We are live now. Welcome to Sustainability in the Workplace, where we delve into the most pressing topics shaping our work environments today. I am your host Sandra Pereira, and today we'll explore the crucial significance of sustainable workplace practices. How can businesses and employees align their efforts to create a more eco conscious workplace? Let's dive in. तो सस्टेनेबिलिटी जब आप ये वर्ड सुनते हो एकदम फैंसी एंड एकदम बज़वर्ड जैसा लगता है पर सस्टेनेबिलिटी केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो हम शेयर करते हैं इट इज these sustainable practices that are integrated into our work environment which help us become more environmentally friendly. It's about creating एक ऐसा culture जो हमारे planet को और हमें अच्छे से रहने देता है एंड सर्वाइवेबिलिटी हमारा इंश्योर करता है. So joining us today we have Madhvi Bhalekar. Madhvi has been a responsible environmental specialist focusing on CSR and sustainable initiatives across India for over 5 years. उनका एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंटिंग इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स फॉर कोस्टल इकोसिस्टम्स में है. वो नेचर प्रमोट करती है, कंजर्वेशन प्रमोट करती है और बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज के भी साथ उन्होंने काम किया हुआ है. And in addition to that, Madhvi has also collaborated with more than 30 corporate organizations working together in various CSR projects. Her work demonstrates a strong commitment to environment and responsibility and sustainability, making a positive difference in the field. So, Madhvi, welcome to today's Sustainable Saturday. Thank you, Sandra, for such a wonderful, warm introduction you given about me. And as I mentioned about the topic sustainable workplace and the practices, so I will drive you through the presentation कि what is sustainable workplace practices, how you can follow और किस तरह से आप आपके डे टू डे ऑफिस एक्टिविटीज में इसे इन्वॉल्व कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और what the benefit you will get out of it. Okay, so if you see nowadays, people are talking about sustainable development goal, SDGs, even the now mobile phone also come up with the application about SDGs, now ESG thing are trending. But what is sustainable और sustainable क्या है, मतलब आम आदमी को समझ में आने के लिए sustainable का definition क्या होना चाहिए और क्या है actual में. तो sustainability is the place or thing you can able to see whatever things are existing you need to be used or utilized in a thoughtful manner. It can be promote for the future generation and they can use a resource that can be used for the next generation. So it is like a form of renewable resources. Okay, so one thing can be like, for example, if you consider water is a renewable resource exists with us, we can utilize that lifelong. But if we can do any wrong thing or not proper like utilize proper way, so it will be going to be dry up or deplete. So that way we need to be think about it before using. So that's actually sustainable or sustainable development. Okay, so I will tell you key as I mentioned, this is sustainability definition. So sustainability definition, I can tell you the one another way. So trees are existing nearby us. They are form of renewable resources, the living source. If we nowadays, if you see everywhere development is happening and development is also necessary, but along with that, we need to be think about it. How we can incorporate them in our day-to-day life or day-to-day things and promote more factors in the plantation activities or promote more things. Okay, if you're developing one building, so nearby that create a green corridor, so that way you can promote the sustainability. So that's the one thing about the sustainability or sustainable development. Okay, so now I can take forward to you कि how we can like what why we need to go for the sustainable development or sustainable workplace practices and why it is necessary. If you see nowadays everyone is talking ki, if you see in the media also, the media network also, ki our fossil fuels are depleting, petrol prices are like increasing day by day. So our water qualities are like not good actually. So water source are drying up. So various factors are there. Okay, so what we need to be do, why this is happening, if
water is a renewable source. Air quality are like major problem like Bombay, Delhi, everywhere. Now metro two tier cities you can see, seeing like one tier two tier cities have water is the problem, air quality is the problem. Why these things are happening and what's the reason behind it? These are the renewable source, so it should not be get affected. But what happening, the overuse or over thing get utilized, things are getting worse day by day. So how you can able to just you how you can able to just reuse or recycle? So I will tell you ki why we need to. So that's the reason we need to be think about it ki resources need to be utilized thoughtful way, thoughtful manner, then only it can promote future thing. Okay. So, along with this sustainability, I would like to add, Sandra, there are three major pillars of sustainability. One is the like society, environment, and the economy. Without these pillars, sustainability will never understand. And if one pillar get imbalanced, it will be affect the other one. So we need to be think about this to disturbing them or affecting them. So it will be affect the whole area. ओके सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, आप कहना चाहते हो कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेजरली तीन पिलर्स पर डिपेंडेंट होता है, पीपल, इकोनॉमी एंड योर एनवायरनमेंट, Correct. करेक्ट? एंड सो दिस एक्चुअली सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक्स, गेट्स मी क्यूरियस। तो एक क्रूशियल क्या होता है जो ड्राइव करता है इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में? व्हाट डू यू थिंक आर दोस फ्यू क्रूशियल थिंग्स? ओके, तो जैसे हमने बात की थी कि सस्टेनेबिलिटी पिलर्स है हमारे, जैसे पीपल है, हमारा प्रॉफिट एंड द एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी, और यू कैन कॉल इट द सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड द प्रॉफिट और द इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। बट ये सारी चीजें तो है, बट हमें क्यों करनी चाहिए? व्हाट इज अ क्रूशियल पार्ट एज यू मेंशन अबाउट इट? सो इफ यू सीइंग लाइक we have renewable and non-renewable sources with us, correct? We know कि non-renewable sources like fossil fuel are they're going to be depleted at one day. But what happening are renewable sources also getting affected. As I mentioned, that air quality is like day by day affecting. Water sources are drying up. So these are the major things. Our food web are going disturbing. So why these things are going affecting? They are the renewable, sure. They need to be regenerated, but they are not regenerating. They are affecting at the cycle. Some stage are going breaking down, so it not need to be happen. Okay, sustainability are interlinked with each and every part of the food chain or food web. It should be not be disturbed. So that's the reason key, if these things are going affecting, so it will affect the whole ecosystem. They will not go on good way. So what I am trying to tell key, our resources are affecting. Okay, and to maintain those resources we need to follow the small practices. That's the reason we are come up with the sustainable Saturday series, where we are like telling people ki, okay, what you need to do. Because see, now if you are subject matter person, you read the book related to that, you understand the concept, you tell the other, you have the same friend circle. But our major agenda for doing this series to reach the small people or small groups, then people follow a small idea or small footstep and execute in day-to-day life. And that's the reason we come up with the topic, okay, going ahead with the sustainable Saturday series. So here I will tell you ki what kind of small sustainable workplace practices we can able to do and execute in the future way. Okay. Nice. So this sounds really interesting and also a little difficult. मतलब मैं जब ऐसे सोचने जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, एंड हमें तो यहाँ बैठकर कहने में आसान है, बट सही में एक्चुअली में ऐसा ये मुश्किल है। सो कैन यू लाइक एक बेसिक सा एक सेंस दे सकते हो कि सस्टेनेबल वर्कप्लेस प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो एक कंपनी की सक्सेस में उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एम्ब्रेसिंग दिस काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी एट अ वर्कप्लेस? कैन यू गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया? यस, श्योर सैंड्रा। सो जैसे हमने बताया कि जो साइड इफेक्ट्स है कि नहीं हम करेंगे, या बैकग्राउंड मैंने जिस चीज़ का बताया कि कैसे करना चाहिए,
क्या होता है उस चीज से नहीं किए तो आई विल टेल यू कि सोल्यूशन कि आपको क्या करना चाहिए जिस तरह से आप अपने सस्टेनेबल वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस मेंटेन रख पाओगे या किस तरह से इन्हांस कर पाओगे एंड दिस विल नॉट ओनली गिव यू द पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ओनली द डे टू डे लाइफ जैसे कि आप बट along with that it will help you out to improve your ESG ranking also जो आप important point of view है every company need to submit their ESG score now everyone is now see our day by day not only we are talking about sustainable development goal but we are trying to implement also. Okay, so I will tell you the solution how we can take forward. The first thing is saving energy. So basically, आप हर offices में देखो now we have the glass office concept everywhere. If you see the MNCs or corporate any organization, they have the glass office concept. So basically क्या हो रहा है कि glass आ गया तो हम light बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं, lights तो open हो रही है लाइट टू यूज हो रही है तो हम एक तो पहली चीज आपको ऑडिट करवाना चाहिए कि कितनी लाइट हम यूटिलाइज करें तो आपको पता चलेगा कि आपके जनरेशन क्या है उसके बाद है कि आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई करो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट कर लिया एक फर्स्ट सोल्यूशन तो हो ही गया सेकेंड थिंग है आप जैसे कि सेंसर बेस्ड लाइट इंस्टॉल कर दो जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहीं पे रहे या टाइम बेस्ड लाइट सिस्टम कर दो इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो सेंसर बेस्ड इज वन ऑफ द गुड सोल्यूशन तो आप वो कर सकते हो कि जहां पे रिक्वायर्ड में है गिव अवेयरनेस टू द एम्प्लॉयज की टेल बाबा वेन एवर वर्क इज नॉट देयर लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसीज प्रिंटर और एनी स्विच बोर्ड्स you can just off switch it off so one of practice app can follow so one thing can as I said that's bigger impact the same way you can do it तो ये तो हो गया आपका one part of the saving energy, electricity, power cuts, okay, power shutdown kind of thing. Then we can move to next point is air ventilation. Okay, so now you see the as I said, the glass building concept is there. So definitely you have the AC system. So open window concept are completely gone. So you I think very few offices might be have that open window culture or open window system so you are saying it will be increase your energy load also and financially also you are getting okay lot of electricity bills and the commercial areas have the bills are very huge also as compared to the normal residential one so that thing so there you can find out ki solution okay you can hire some person or expert tell them कि okay क्या कर सकते हैं हमारे बिल्डिंग premises के लिए किस तरह से जैसे उसके लिए एग्जांपल आई वुड लाइक टू मेंशन कि मड क्ले एसी सिस्टम है एग्जिस्ट मार्केट में तो आप वो इंस्टॉल करा सकते हो वो दैट इज वन ऑफ द सोल्यूशन आप थोड़ा विंडो कल्चर या आप नए का ऑफिस डेवलप करने वाले होंगे तो उस कल्चर को आप प्रमोट कर सकते हो तो दैट विल योर वेंटिलेशन योर डे टाइम यू गेट फ्रेश एयर ऑल्सो कि लाइक आप 20 आप यू नोटिस जैसे हम कभी भी 24/7 एसी रूम्स में बैठ रहे हैं एंड ऑल ऑफ सडन आफ्टर 6 यू go out you feel different your body is adapted with some certain thing and we are not the person because we are living in a now I am talking about myself we are in coastal belt so our body temperature things are completely different and now after I'm coming at 10 o'clock in the office and living with the 6 so the whole time I'm in AC and later on you can see the changes in your body actually you can notice it yourself सो आपको एक चीज को प्रमोट करना चाहिए कि कैसे आप ओपन वेंटिलेशन को थोड़ा फोकस करो एक ओपन वो सारी चीजें हैं फिर आपकी नेक्स्ट चीज आती है कि रिसाइकल एंड रीयूज जैसे कि आप कोई भी चीज है ऑर्डर कर रहे हो बेसिकली तो कटलरीज आते हैं नाउ आई थिंक लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन ऑप्शन नॉट टू ऑर्डर कटलरी इफ यू हैव द or you have the reusable cutlery option so or mega ordering system like suppose if you're ordering or local sourcing option is there if you're ordering for the office to give go for the local source vendors so it will be promote livelihood for them also so that is a one solution कि आप disposables वाले जो भी यूज करें वो recycle वाले यूज करो या प्रॉपर कॉफी मग्स ले लो अपना खुद के एंड देन हैव द डिश वॉशर तो that can be washed and reused so that will affect कि आपके जो कटलरीज का वेस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा वहां पे देन आपको ट्रांसपोर्टेशन इज द वन ऑफ द मीडियम कि जैसे आप ट्राई टू गेट द इफ एग्जिस्टिंग ऑफिस है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते यू नीड टू बी ट्रांसपोर्ट देन यू हैव वन ऑप्शन इज कार पूलिंग इफ एम्प्लॉयज आर कमिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप ज्यादा प्रमोट करो कि ओके यू आर कमिंग बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दैट इज वन थिंग देन अनदर थिंग इज आप कार पूलिंग सिस्टम को कर सकते हो सपोज
people are staying nearby the places, so they can come by the carpooling system. So that is the one. तो आपके एक तरह से footprints पे इसमें कम हो जा रहे, तो one that thing is can be promoted. Then majorly offices में papers बहुत use आते हैं. Sometime you are always okay, you want to see or you want to send, you just take a print out and send to like tell or pass on, or you can randomly write. So आपको पेपर वेस्ट पे भी बहुत कंट्रोल रखना चाहिए कि you should like focus. Suppose big organization, they have the paper person who can able to help you out with the printing, so you can have the count, okay ये person से इतने इतने prints आए, और give the awards कि okay इतने कम prints इस person से आए. So it is like a green reward system. You can have the competition between your employees only कि नहीं, promote for the green reward system कि आपने इतना कम किया आपका वेस्ट, या आपने इतने टाइम कारपूलिंग किया, इतने टाइम आपने लोकल ट्रांसपोर्ट यूज किया, कटलरीज कम यूज हुए. So that way you can promote. Okay, so this is the one of the benefit, like not only just telling them but actual execution में भी आप उनको involve करके ले लो. So that way you can focus on more cleaner or greener part. Okay, then as I said that waste is another thing. Like if you notice in office, every desk have a one dustbin with one lining. There is a waste generating. So rather than having, so what happened in here, plastic is waste is created. So even manpower is also needed. So the ground staff होता है, उनको day to day basis पे आप डालो कुछ ना डालो, but they have the work, वो उनको वो रिप्लेस कराना पड़ता है लाइनिंग से. तो आपको कितने, सपोज एक ऑफिस में 2000 लोग बैठ रहे हैं, तो 2000 लोगों के डस्टबिन हो गए, वो आपको रिप्लेस करना, उसमें मैन पावर भी लगा. उसके बदले आप सपोज एक सेंट्रल बिन सिस्टम रख दो, एक फ्लोर पे एक डस्टबिन रहा, whenever you want to go, आप जस्ट उस अपने जगह से उठ जाओ, अपना कचरा डाल दो, एक सिंगल बड़ा बिन आ गया, वन लाइनिंग आ गया. इसमें अपना देखिए कितना एक प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली. मतलब दिस वे यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस. देन स्नैकिंग आप बहुत ज्यादा हमने नोटिस किया हुआ है कि स्नैकिंग बहुत ज्यादा ऑफिस में होती है, एवरीवन फॉलो. तो एक चीज आप कर सकते हो कि सपोज ग्रुप्स है या टीम्स है, तो उनका एक साइड में कंबाइन आप स्नैक ऑर्डर कर लो. तो दैट वे वी कैन स्टोर इन अ गुड स्टील कंटेनर और एनी गुड कंटेनर, जो ग्लास कंटेनर. तो वो एक हो गया. हेल्दी स्नैकिंग्स को प्रमोट करो रादर देन हैविंग अ रैपर्ड वन. आप एक फ्रूट्स को, इवन नट्स इज अ गुड ऑप्शन, वो चीज को प्रमोट कर सकते हो. सो दैट वे एक्चुअली यू कैन गिव, एक तो आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी एंड गुड स्नैकिंग ऑप्शन ऑल्सो यू क्रिएटेड. देन बाद में आप आते आगे बढ़ते हैं, तो एक है वाटर प्रॉब्लम. सो इफ यू हैव टैप सिस्टम एवरी, सो समटाइम व्हाट हैपन कि आप प्रेस करके रखते हो या यूज करते हो जब तक इस वाटर इज रनिंग, करेक्ट. तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, एक सेंसर बेस्ड टैप लगा दो. डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट है, बट इफ यू सी द लॉन्ग लाइफ फॉर द प्रोडक्ट, तो आपके वाटर कट डाउन भी डेफिनेटली हो जाएगा. आप डेफिनेटली इसके पहले वाटर चीजों के आपके ऑडिट्स करा के ले लो, तो यू विल आइडेंटिफाई कि कितने रिसोर्सेज यूज हो रहे आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस थिंग्स, आपके कितने रिसोर्स बच गए. तो सेंसर बेस है, अभी तो वो पेडल बेस भी आ गया, जैसे आपको प्रेस करना है आपके पाव से एंड देन वाटर विल कम आउट. सो दैट विल बी ऑल्सो मैकेनाइज्ड फॉर्म, तो आप वो भी यूज कर सकते हो. तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर एग्जिस्टिंग विद अस, बट आपको वो कैसे यूज करना है और यूटिलाइज करना है आपके डे टू डे लाइफ में. So that is also the solution. So I think Sandra, I already explained lot of points. So बहुत मतलब I'm not telling कि each and every organization need to be whole implement, but at least few points you can try to. Definitely कि इसमें initial adjustment बहुत difficult होगा. जैसे आपने टिश्यू पेपर कल्चर आपने देखा होगा बहुत ऑफिसेस में है कि every desk have the tissue paper. So मैंने एक एग्जाम्पल एक जगह पे देखा था, तो उन्होंने उनके एचआर को भी बहुत कंप्लेंट्स मेल आई थी कि नहीं हम कैसे हटा सकते हैं टिश्यू पेपर, इट्स अ नेसेसरी और मैंडेटरी इन द ऑफिसेस. बट लेटर ऑन एचआर सेड कि नहीं मिलेगा, इट विल कट डाउन. इवन द वॉशरूम प्लेसेस से दे रिमूव एंड दे यूज इंस्टॉल द ड्रायर, ओके, सोलर बेस्ड ड्रायर्स. तो उसमें क्या हो गया, उनको डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम कंप्लेंट्स आई, बट लेटर ऑन मैनेजमेंट नीड टू बी टेक कॉल. उन्होंने कॉल ले लिया एंड दे स्टॉप. बट नाउ पीपल स्टार्ट bringing their hankies. So I also follow this practice in my day to day. I bring my own hanky. It is not difficult actually, and I think everyone in our office follows some. So we don't have the digital culture in the office. So that way we can, small things obviously take time to implement, but later on once you used to with the things, you can follow.
करेक्ट। मैं इसी चीज पर ना एम्फेसिस ड्रॉ करने वाली थी कि आपने ये जो सजेशंस दिए हैं, these are really nice, but then they will, of course, some people will definitely have that thing कि अरे यार ये कैसे कर सकते हो ऑफिस में, like example, there's a lot of times when मैं कोई ऐसी चीज डिस्कस करती हूँ कभी किसी के साथ, तो अगर मैं ऐसा, let's say one example, मैंने बोला पेपर कप छोड़ दो, अपना खुद का कप यूज करो, दैट इज मोर सस्टेनेबल, एंड then नेक्स्ट पर्सन आता है तो इसमें तो पानी का वेस्टेज हो रहा है, अभी उसमें क्या आप एक रिसोर्स बचाने के लिए दूसरा रिसोर्स का ये कर रहे हो, सो there's something that needs to be that perfect balance that needs to be done when it comes to all of these when it comes to sustainability, for a matter of fact कि अगर ये भी करो ये भी करो, of course you can't have the perfect balance कि एकदम sustainable godlike life, but we need to really draw emphasis on the sort of changes, even the smallest things that we can make जो हमें हो सकता है, and then we can try and see how these changes can be implemented on a larger scale in the office and stuff. So now coming to the same question, कितने सारे challenges होते होंगे organizations को जब वो लोग face करते होंगे when they must be trying to do these kind of transitions, जैसे HR को तो बहुत सारे complaint mails आते होंगे, तो ऐसा क्या कर सकता है एक company, एक organization to effectively implement these kind of changes without disrupting the way they are operating? So what do you think? What are your thoughts on this? Yes. तो सैंड्रा, जैसे कि पहले चीज मैंने बोला कि अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जब तक पता ही नहीं चल रहा है, आप एक फिगर्स के साथ चले जाओ, हमारे ऑफिस में इतने फ्लोर के लिए इतना पानी यूटिलाइज हो रहा है, आप जब तक चीजों के ऑडिट्स नहीं करोगे, चीजें पता नहीं होंगी आपको, आप बोल ही नहीं पाओगे। तो कम अप विद द फैक्ट एंड फिगर्स। आप सिर्फ बोल रहे हो कि पानी वेस्ट हो रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा यार पानी वेस्ट हो रहा है, बट कितना पानी वेस्ट हो रहा है ये तो पता होना चाहिए ना। मैंने बोला कि 2000 लीटर मेरा पानी वेस्ट हो गया, तो डेफिनेटली इट्स अ फिगर आपके ब्रेन में पंप अप हो जाता है कि नहीं भाई इतना पानी वेस्ट हो रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। सपोज कंसिडर करो 2000 एम्प्लॉइज है, तो उसमें कंसिडर हो गया नहीं यार 2000 में 500 लोगों ने भी सुन ली मेरी बात, तो अफेक्टफुल तो हो गया ना, 500 लोग तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे हम भी बोलते हैं हमेशा कि किसी भी चीज का अवेयरनेस होना सबसे बड़ी चीज है। एक बार अवेयरनेस हो गया, लोगों को समझ में आया, मैं नहीं बोल रही कि 100% हमारा अवेयरनेस रीच आउट होगा, कोई भी है, बट एक 50% भी लोग फॉलो करें। एंड इफ यू सी दिस इज अ सोशल मीडिया लाइफ, एवरीवन फॉलो। जैसे कि मैंने अभी देखा बहुत से लोगों के मेरे फ्रेंड सर्कल में सोलर इंस्टॉल कर लिया, दूसरे ने फोटो डाला, मैंने भी सोलर इंस्टॉल कर लिया। सो दैट वे यू कैन प्रमोट कि चलो आप एक तरह से एक दूसरे को कॉपी कर रहे हो, तो गुड वे आल्सो यू कैन कॉपी। तो एक चीज है, डेफिनेटली चैलेंजेस तो आएंगे, बट समवेयर यू नीड टू बी स्टार्ट। तो जैसे वेस्ट जनरेट हो रहा है, मैंने बोला कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप उनको फैक्ट एंड फिगर के पास चले जाओ, आप बता दो इतना चला हो रहा है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो दे विल आल्सो कंसीडर आइडिया। आप सिर्फ बोलते रहोगे नहीं हो रहा है, बट इट इज लाइक अ पास्ट टेंस फॉर देम आल्सो, नहीं चल रहा है ना, हो रहा है ना, बट once you start implementing, जैसे मैंने बोला ना, एक एग्जांपल बताया ना, नॉट डिस्क्लोज द प्लेस नेम, बट उन्होंने भी बोला था कि पेपर्स के लिए हमें बहुत, जो अपने ये होते हैं टिश्यू पेपर्स के लिए बहुत कंप्लेंट्स आई, बट वी आर वेरी फोकस कि नहीं हमें करना है, एंड दे इम्प्लीमेंटेड एंड इट सक्सेसफुली वेंट ऑफ। तो वही चीजें हैं कि आपको चीजें सोचनी चाहिए, एक चीज का दूसरे चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव द बिग इम्पैक्ट, व्हाट आई से। करेक्ट। एंड आई थिंक आपका वो जो अवार्ड्स वाला आइडिया है ना, दैट इज अमेजिंग कि एक इंसेंटिव अगर मिलेगा ना किसी को कि ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। करेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक वो पुश भी मिल जाएगा, इवन दैट सोशल मीडिया का थोड़ा सा वो पुश मिल जाएगा। आई थिंक दैट लिटिल बिट ऑफ पुश व्हेन दैट कम्स इन, आई थिंक ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आप एम्फेसिस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इज एम्प्लॉई एंगेजमेंट। करेक्ट। अंटिल द पीपल जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जब तक वो नहीं कर पाते अच्छे से लाइक इम्प्लीमेंट, तब तक नहीं बताएगा। So something like that कि employees have to, what do you think, how can employees draw something like this and bring it to a success? So see, जैसे कि आपने ग्रुप्स, मेजरली सपोज बड़ा चंक है तो ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। आप बोले कि आप इन हाउस टीम में कॉम्पिटिशंस बना दो, ओके आप एक ऑडिट करा दो, चीजें बता दो उनको, इतनी इतनी चीजें हो रही है, आपको ये कम करना है। चलो आज मैंने बोला कि आज मेरे टीम के 10 लोग हैं, 10 लोगों ने कारपूलिंग किया, इतना इतना ऑडिट हो गया, इतने इतने पॉइंट सेव हो गए। तो इट शुड बी लाइक हम डेफिनेटली आपके डे टू डे लाइफ की चीजें होनी चाहिए, बट उसके अलावा टेक अ 5 or 10 minutes आउट ऑफ योर डे एंड गिव टू दिस ग्रीन रिवॉर्ड सिस्टम।
तो एक महीने में आप एक बार डिक्लेयर करो कि दिस इज अ ग्रीन विनर एंड गिव सम गुड इंसेंटिव टू देम, सो दे विल डेफिनेटली फॉलो. सो आई एम नॉट टेलिंग कि आप एक पूरे बल्क लेवल पे करो. ट्राई विद अ स्मॉल स्मॉल थिंग. आप पहले वाटर को कट डाउन के लिए चेक करो, देन गो फॉर द अपना सॉलिड वेस्ट के लिए चले जाओ, देन डेफिनेटली air related point take will time, it's a huge cost involvement, but cost involvement वाला part आप later on consider कर सकते हो, but initially go for the small thing जो एक्चुअली में आप कर सकते हो इनिशियल लेवल पे. कहीं लीकेजेस होते हैं, वो लीकेजेस के लिए फॉलो करा जाए, बिकॉज मैंने बहुत जगह पे नोटिस भी किया है कि टैप आर लीकिंग बट नो वन इज बॉदर. और क्या होता है कि ऑलवेज पीपल थिंक इन मेंटेनेंस टीम विल डू, तो इट इज लाइक वाइस वर्सा कि कोई तो करेगा. वो माइंडसेट जब चेंज हो जाएगा ना हमारा, तो थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज. That is true. That is true. And I think even this whole tap example that you spoke about, बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजीज वगैरह भी आ रहा है, आई थिंक, राइट, यू नो, ऐसा कि जो सस्टेनेबल बनाने में हेल्प कर सके एक वर्क प्लेस को. ऐसे और कौन से टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव ट्रेंड्स है, यू नो, दैट कैन हेल्प मेक आवर वर्क प्लेसेस बेटर? तो जैसे मैंने बोला कि सेंसर बेस्ड बहुत से लाइट सिस्टम आ रही है. जैसे कि आप एक सिस्टम रखो, एक डेस्क के लिए एक लाइट नॉर्मली होता है. जब सपोज पर्सन इज नॉट देयर, लाइट ऑटोमेटिकली गेट ऑफ, तो वो सिस्टम है. तो बहुत से इंटरनेशनल लेवल्स पे भी हो रहा है, तो आप वो इंस्टॉल करा सकते हो. तो वो नहीं है तो सोलार पे आप थोड़ा सपोज मेगा लेवल पे आपको जाना चाहते हैं तो सोलार पे कन्वर्ट हो जाओ. एआई बेस्ड लाइट सिस्टम है. आपने तो देखोगे कि फैन सिस्टम है, कंट्रोल जो रिमोट कंट्रोल्स आ रहे हैं. तो देयर लॉट ऑफ टेक्निक. जैसे आप जब रिसर्च करोगे ना, अभी तो मैंने आपको बहुत बता दिए पॉइंट्स, बट व्हेन यू एक्चुअली गो एंड रिसर्च यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स कि इतने चीजें भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है. जैसे सपोज एक कोई किसी को प्लांट दे दिया एंड गिव अ कंपटीशन कि कितना ग्रो हो रहा है, कितने हाइट तक चल रहा है, देन गिव रिमार्क और रिवॉर्ड. तो वो हो सकता है हर डेस्क पे एक अच्छा प्लांट होगा, वो आपको मेंटेन करना है, नर्चर करना है. ऐसा ना हो कि भाई अपना मेंटेनेंस वाला बंदा कर ले, मैं नहीं करूंगा. दैट वुड नॉट लाइक दैट कि आपको करना है कि नहीं, मैंने दिया है आपको, आपको मेंटेन करना है, आपको लाइफ लॉन्ग. सो दिस विल नॉट ओनली गिव यू ओके, एक केयरिंग नेचर ऑल्सो डेवलप हो जाता है. मतलब मैंने जैसे हमें स्कूल्स में बताए जाते थे कि यू वांट टू केयर, तो आप एक प्लांट दे दो, यू गिव वाटर, नरिशमेंट एंड देन ऑब्वियसली लव, then only it grow. I think from there the mentality change. Yes. So I want to tell कि एक mentality आपको जब change होगी तो चीजें automatically change हो जाएंगी. Correct, absolutely true. तो I would like to give one example. जैसे आपको पता है कि इन्वेस्टर बिजनेस डेली रिपोर्ट्स आते हैं, ओके. तो लास्ट उनका 23 का रिपोर्ट आया था और उसमें मैंने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है वो टॉप ESG रेटिंग मिला था. तो आई जस्ट इन्वेस्टिगेट कि क्यों मिला था, क्या रीजन है. तो आई वेंट टू द माइक्रोसॉफ्ट. आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी कंपनी बट जस्ट अ रेफरेंस. तो उनका ESG रेटिंग जो था वो 72.76 था. तो इन 2022 का उनका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में तो मैंने देखा कि क्या चीज है कि क्यों उनको अच्छा इतना रैंकिंग मिल रहा है, ग्लोबल रैंकिंग मिल रहा है. तो फिर मेरे को आइडेंटिफाइड हुआ कि उन्होंने जो अपना किचन है, दे ऑब्वियसली हैव द किचन सिस्टम, जो यहाँ पे स्टाफ अपना खाना खा लेता है, ओपन, एवरीवन गेट द फूड, 1000 मील्स बनते हैं उनके किचन में. तो दे आर यूजिंग अ हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल हाइड्रो पावर एनर्जी, एंड देर 100% किचन बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट. सो दैट इज अ वन सोल्यूशन. जैसे कि आप ये सारी चीजें करोगे ना तो आपको डेफिनेटली आपके रैंकिंग में भी चीजें मिलेंगी. तो जो हम सस्टेनेबल रिपोर्टिंग्स देते हैं, जो भी सेबी को या जहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करते हैं, तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा डेफिनेटली. आप तो आपके गोल्स भी अच्छे से अचीव हो रहे हैं, आपको बेनिफिट भी मिल रहा है. एंड डेफिनेटली नाउ अ डेज इफ यू सी मार्केट में इन्वेस्टमेंट जब अभी कोई भी हो रहा है, या जो भी इन्वेस्टर है, जैसे भी आप डाउजोन में देख लो या जहां पे भी जाओ, स्टॉक मार्केट्स में देख लो, आपकी ESG रिपोर्टिंग चेक हो रही है कि हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग एंड हाउ थॉटफुल अबाउट योर फ्यूचर. तो दैट्स द रीजन. तो दैट इज गिव यू वन अप्रिसिएशन वैल्यू ऑल्सो. समझा? तो इट इज नॉट लाइक कि एक चीज जैसे मैंने बोला कि दूसरे से इंटरलिंक होती है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया माइक्रोसॉफ्ट का, उन्होंने हाइड्रो पावर बेस अपना रिन्यूएबल हाइड्रो पावर बेस किचन बना दिया. उससे क्या हुआ कि उनके ESG रेटिंग में एक इफेक्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट फॉर देम, बट एक इंस्टॉल किया उन्होंने, एंड दे विल नाउ डूइंग इन मेगा लेवल ऑल्सो. उनकी कारपूलिंग सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया है, मेंटेन किया है. तो दिस इज अ वन एग्जांपल. जैसे हम भी अपने स्मॉल लेवल पे भी कर ले तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली. ओके. So actually, if you think about it, ना हमारे इस
फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा सस्टेनेबल चॉइसेस एंड ऑल करना, इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग, यू नो, ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक सॉल्यूशंस है, बट उन्हें इनकॉर्पोरेट करना, दैट एक्चुअली बिकम्स सच अ बिग प्रॉब्लम. But as you rightly emphasized, you know, every small step towards a larger goal counts. Be it waste reduction या be it energy saving, कुछ भी हो, अगर हम थोड़ी सी भी चीजें कर सकते हैं, all of it will help us build a better and more sustainable future, both at work and beyond work. So, as we are drawing our discussion to a conclusion, Madhvi, and for all of your insights about sustainable workplace practices, all of these have been really, really enlightening and insightful. तो एक रैप अप करने के पहले आप कुछ एक फाइनल ऐसा एक मैसेज देना चाहोगे हमारे, या की टेक अवे जो हमारे व्यूअर्स है जो ले जा सकते हैं फ्रॉम दिस सेशन? Yeah, sure, Sandra. So, देखिए, I would like to tell you, emphasizing sustainability, it is not a choice. इट शुड बी ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जब भी सस्टेनेबिलिटी को देखोगे चॉइस ना देखते हुए, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो कि नहीं यार मुझे करना है. जैसे आप चीजें कुछ भी है कि आई वॉन्ट टू अचीव सच सर्टन गोल, जैसे आप बोलते हो, तो उस तरह से इस चीज को भी देख लो. डेफिनेटली इफ आई एक सर्टन टाइम के बाद मेरे फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए, तो व्हाट माय बेबी विल ड्राइव यार, कार नहीं चला पाएंगे, फिर तो वो बैक टू द बुलेट कार सिस्टम आ जाएगा. तो वो नहीं चाहिए ना हमें कि इट शुड बी गो कि रॉकेट चलाए, चीजें अलग से लेवल पे चले जाए. तो थिंक अबाउट दिस कि इट विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ऑल्सो एंजॉय. नहीं तो क्या होगा कि हमने एंजॉय कर लिया और खत्म हो गई बात वहीं पे. तो नेक्स्ट नथिंग विल लेफ्ट. जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने एक मैंगो ट्री लगा दिया, तो नाउ आई कैन एबल टू ईट दैट मैंगोज, right? Later on also my child also eat. So similar way it should be gift to the next generation rather than getting worse for them. So that's my actually message for the session. Thank you so much, Madhvi. Very valuable insight that you have shared with us, and a very crucial takeaway that you have given our audience. And your dedication to, you know, fostering sustainability at workplaces is really tremendous. And for our viewers, I hope we remember that sustainability, like Madhvi has drawn very great, you know, conclusion to कि एक destination जैसा नहीं है वो, it is a journey. एंड हमें कॉन्स्टेंटली करना है कि हम हमारे, यू नो, वी नीड टू सर्वाइव in a manner that we do not you know, steal from our future. Okay, so we need to ensure that we are giving our future generations a very good life. So stay tuned for many more engaging discussions like this on topics that are shaping our work environment. And until next time, stay inspired and keep nurturing a green future. Thank you.